first thing I want to tell you and encourage you is, in your pain, please don't leave praying. तो पहली चीज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आपके दर्द के समय में प्रार्थना करना बंद मत करना। And number 2, दूसरी बात, never leave praising the Lord. कभी भी प्रभु की स्तुति करना छोड़ना मत। Can I hear an amen there? All right. So in your prayer, तो आपके प्रार्थना में you can also use a prayer language which God has given us. प्रार्थना की भाषा जो प्रभु ने हमें दी है उसका भी इस्तेमाल हम कर So सकते हैं। today I will talk a bit about it. तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करूंगा And we can use it for the glory of God so that you are blessed by it. और उसका इस्तेमाल हम करेंगे प्रभु की महिमा के लिए। Can I hear an amen there? All right. So today I want to talk to you about something called tongues in the Bible. तो बाइबल में अन्य भाषा जो लिखा है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। Yes. So you may ask me, Pastor, do you speak in tongues? Yes. आप पूछेंगे पास्टर क्या आप अन्य भाषा में बोलते हो? Yes. हाँ बिल्कुल, I do speak. मैं बात करता I हूँ, believe. मैं विश्वास करता हूँ And I believe there are a lot of benefits in it. और मैं विश्वास करता हूँ उसके बहुत सारे फायदे भी है। Can I hear an amen there? Okay. Now, if you don't believe it, just look at God's word. God will help you. अगर आप विश्वास नहीं करते हो प्रभु के वचन को देखो, प्रभु आपको जरूर मदद करेंगे। Okay. But if you don't speak in tongues, it doesn't mean that you are not saved. Okay. तो अगर आप अन्य भाषा में नहीं प्रार्थना कर सकते तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपका उद्धार नहीं हुआ। Yeah. So there's no condemnation. तो ऐसा कोई दोष नहीं है But यहाँ। I want to bring it up so that you will love it and you will ask from God. तो लेकिन ये मैं सिखाना चाहता हूँ ताकि आप इसे प्यार करो और प्रभु से मांगो Yes. And God will give beautiful gifts to you. और प्रभु आपको जरूर सुंदर भेंट देंगे। Jesus said, यीशु ने कहा, whoever believes in me, जो कोई भी मुझ में विश्वास करेगा these signs will follow them. ये चिन्ह उसका पीछा करेंगे। Now look at that last line. आखिर की जो लाइन है देखो, Jesus said, यीशु ने कहा you will speak in new tongues. आप नई भाषा में जरूर बोलोगे। Now this is not for a few people, it's for everybody. ये कुछ लोगों के लिए नहीं है, सबके लिए है। Now maybe you are not speaking in tongues. हो Maybe. सकता है आप अन्य भाषा में नहीं प्रार्थना करते हो, Don't worry. चिंता मत करो। Maybe you are fearful to speak in हो सकता है आप डरते हो अन्य भाषा में प्रार्थना Don't करने के लिए, worry. फिर भी चिंता मत because करो our help comes from God. क्योंकि हमारी मदद प्रभु से आती है। Can I hear an amen there? So I just want to tell you, the Lord wants you to have it. तो मैं कहना चाहता हूँ प्रभु की इच्छा है कि आपके पास ये हो। Okay. 1 Corinthians 14 verse 18. पहला कोरिन्थियों 14 में 18, Okay. 1 Corinthians 14 verse 18. Now Paul is talking. पौलुस यहाँ पे कह रहा है, Now he's a spiritual man. वो Okay. एक आत्मिक व्यक्ति है And he has written 75% of the New Testament. और नए करार में 75% उसी ने लिखा है। What he says, वो क्या कहता है? I thank God that I speak in strange tongues more than any of you. मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि मैं अन्य भाषा में आप सबसे बढ़कर और ज्यादा मैं बात करता हूँ। So we saw Jesus wants you to have it. तो हमने देखा कि यीशु की इच्छा है कि आपके पास ये अन्य भाषा हो। Paul is saying, I also pray. पौलुस भी कहता है कि मैं भी प्रार्थना करता हूँ And now he says, I want you also to pray. और वो कहता है अब मेरी इच्छा है कि तुम भी ऐसे प्रार्थना करो। 1 Corinthians 14 verse 39. पहला कोरिन्थियों 14 में 39, Do not forbid to speak with tongues. लोगों को रोको मत अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए। This church will never stop anybody from speaking in tongues. ये कलीसिया किसी को रोकेगी नहीं अन्य भाषा में प्रार्थना करने Okay, से। but there's a way to do it when we are in a church setting. लेकिन जब कलीसिया की सभा चल रही है तो एक तरीका होता है करने का। Can I hear an amen? Now you write a question. आप एक सवाल लिख लो, What is this speaking in tongues? What ये is? अन्य भाषा में प्रार्थना करना है क्या? So 1 Corinthians 14 verse 14 says, पहला कोरिन्थियों 14 में 14 कहता है, if I pray in a different language, अगर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ who is praying? तो कौन प्रार्थना कर रहा है? My spirit is praying. मेरी आत्मा प्रार्थना कर रही है। 1 Thessalonians 5:23 says that. पहला थेसलोनियन 5 में और 23 में ऐसा लिखा है, Man is made of 1, 2, 3 things. मनुष्य के अंदर ये 3 बातें होती है, 1, 2, 3. 1, 2 और 3, Okay. Spirit, आत्मा, soul, प्राण, body. शरीर। So when you are praying in tongues, your spirit is speaking. तो जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो आपकी आत्मा बात करती है। Before Jesus came, यीशु के आने के पहले no believer spoke in tongues. कोई भी विश्वासी अन्य भाषा में नहीं प्रार्थना करते थे, But now, लेकिन अब after Jesus came, यीशु के आने के बाद, after he died, मरने के बाद after he rose up, और फिर से जी उठने के बाद he sent somebody. यीशु ने किसी को भेजा, His name is the Holy Spirit. उनका नाम है पवित्र आत्मा, And he changed everything. और उन्होंने सब कुछ बदल दिया। Now, let me tell you a bit about your spirit. थोड़ा आपको मैं आपके आत्मा के बारे में बताता हूँ। Yeah, you are very special. आप बहुत खास हो, You are not normal. You are very, very
special to the Lord, and everybody knows it. आप आम नहीं हो, आप बहुत बहुत खास हो प्रभु के लिए और सब लोग ये जानते हैं। So where are we today? तो हम कहाँ पर हैं आज? We have a relationship with God हमारा एक रिश्ता है प्रभु के साथ through Jesus. यीशु के द्वारा। So somewhere in your journey, you came one day, I came one day to the Lord and I said, Lord, I am a sinner. तो कहीं तो हमारी यात्रा में एक दिन आप, मैं, हम प्रभु के पास आए और हमने कहा प्रभु मैं पापी हूँ And only you can save me. और सिर्फ आप मुझे बचा सकते हो, Only you. सिर्फ आप, And your blood can help me. और आपका लहू मेरी मदद कर सकता है। That day, you know what happened? उस दिन क्या हुआ पता है? All your sins were forgiven. आपके सारे पाप क्षमा हो गए And your deep vessel of heart, और आपका जो हृदय है उसको पूरी तरीके से प्रभु ने निर्मा से नहीं साफ किया, उसके खुद के लहू से घिस के हर एक जो कालापन है अंदर का वो सारा घिस के प्रभु ने साफ किया है उसके लहू के द्वारा। Now when that happened, something happened inside you. जब ये हुआ तब आपके अंदर कुछ हुआ, In your spirit something happened. आपके आत्मा में कुछ हुआ। John 3 and verse 6 says, यूहन्ना 3 और 6 में लिखा है, yeah, people give birth to what is human. लोगों को ही जन्म देते हैं, हाँ वही बराबर। But ahead it says, लेकिन आगे लिखा है God's spirit gives birth to your spirit. परमेश्वर की आत्मा आपके आत्मा को जन्म देती है। Yeah. So when I came to the Lord on that day, Lord, I am a sinner, please help me. तो जिस दिन मैं प्रभु के पास आया और मैंने कहा प्रभु मैं पापी हूँ मेरी मदद करो, Amen. The blood of Jesus landed over me. जिस क्षण यीशु का लहू मेरे ऊपर आ गया, The Spirit of God पवित्र आत्मा, brought something. He did something inside me. पवित्र आत्मा ने कुछ मेरे अंदर किया। So here's the Spirit. तो ये है आत्मा। This one did not get birth. इसको नया जन्म नहीं मिला। इसको भी नहीं मिला. So when I came to Jesus, I was the same person. तो जब मैं यीशु के पास आया तो मैं वही व्यक्ति था, Body वैसा ही था. शरीर वैसा ही था। ऐसा नहीं कि एक बड़ा मसला है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि कलर बदल गया, ऐसा नहीं कि शॉर्ट लंबा हो गया, nothing, everything just stayed. Even here nothing has changed. यहाँ पर भी कुछ भी नहीं बदला, But something happened over here. लेकिन यहाँ पर कुछ तो बदल गया, Something happened over here. कुछ तो बदल गया। Just like a child is born, जैसे एक बच्चे something का जन्म होता है, happened in your spirit, आपके आत्मा में कुछ तो हुआ, which never happened in the Old Testament. पुराने नियम में ये कभी नहीं हुआ कभी था, नहीं हुआ है. Never happened. कभी नहीं हुआ। So you are special. तो आप बहुत खास हो। That's why Jesus said, John the Baptist is the greatest among all who are born. इसलिए यीशु ने कहा कि यूहन्ना जो बपतिस्मा देता है वो सबसे महान है जितने भी लोगों का जन्म हुआ है उसमें से। But लेकिन the least in my kingdom is greater than John the Baptist. मेरे राज्य में जो सबसे छोटा भी है वो यूहन्ना से भी बढ़कर है। If you go to Colossians chapter 2 and verse 11. कोलोशियंस 2 और 11 अगर हम देखेंगे, Now in the Old Testament, if you want to get into a relationship with God, पुराने नियम में अगर प्रभु के साथ आपको रिश्ता चाहिए, before Jesus came, if you want to have a relationship with God, यीशु के आने के पहले अगर आप यीशु के साथ रिश्ता, परमेश्वर के साथ रिश्ता चाहते थे, yeah, Bible talks about making a covenant with God. बाइबल में लिखा है प्रभु के साथ वाचा बांधना। Okay, so if you make a covenant with God, अगर प्रभु के साथ वाचा बांधते हो you have to be circumcised, तो खतना होना बहुत जरूरी होता था, but it is of the flesh. लेकिन वो शरीर का होता था। So anybody who says, I want to have a relationship with तो God, जो कोई भी कहता था मुझे प्रभु के साथ रिश्ता चाहिए, he has to go through circumcision. तो उसका खतना होना बहुत जरूरी था। But लेकिन the day you came to Jesus जिस दिन आप यीशु के पास आए and said, Jesus, और कहा यीशु I'm a sinner, मैं पापी हूँ, please save me. कृपया करके मुझे बचाओ, You know what happened? पता है क्या हुआ? By the Spirit, आत्मा के द्वारा in your spirit, आपकी आत्मा में a birth took place. एक जन्म हुआ। Not only that, उतना ही नहीं, but something was cut away. तभी कुछ तो काटा गया वहां से, Something was cut away. कुछ चीजों को वहां से काट दिया गया। Not here, शरीर में नहीं, not here, प्राण में भी नहीं, but here. लेकिन आत्मा में Something was just cut. कुछ चीज को काट दिया गया। आप बोलोगे लेकिन पास्टर अभी भी मेरे को ना बहुत तकलीफ होता है। Yeah, because there are two still. One is your soul and one is your body. क्योंकि आपका प्राण और शरीर दोनों है आपके पास, Yeah, and this soul ना has been damaged major. और ये प्राण में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। That's why Bible says the moment you come to the Lord, the next step is you have to renew your mind. इसलिए बाइबल में लिखा है जिस क्षण आप प्रभु के पास आते हो तो दूसरा कदम यही है कि आपके मन को नया करना है। Yeah. Now when Johann was born, जब यूहन्ना का जन्म हुआ था, yeah,
So we have mother tongue and father tongue. You're right now. मम्मी की भाषा होती है और पिता की भाषा भी होती है. मैं नहीं बोल रहा. So mother tongue is Gujarati. मम्मी की भाषा गुजराती है. Father tongue is तमिल. Tamil. But father doesn't know Tamil properly. लेकिन पिता ही तमिल नहीं जानते. My neighbor did not come and teach Johan their mother tongue. तो मेरे पड़ोसी ने आकर उनकी भाषा योहान को नहीं सिखाई. No, but he picked up the tongue of her mother. तो लेकिन उसने अपनी माँ की भाषा ले ली. That's called Gujarati. गुजराती. Was it easy for him to pick up? क्या वो आसान था उसके लिए? Yes. बिल्कुल. Because the mother was talking. क्योंकि माँ बात करती. केमचो. और क्या बोला आपने? मजा महा. Why he learned केमचो? क्यों उसने गुजराती सीखा? Because he belongs to the Nadar family. Hello? Same way. वैसे ही When you are born again, जब आपका नया जन्म होता है, you belong to a family. आप एक परिवार का भाग होते हो. Family of God. परमेश्वर का परिवार. John chapter 1 verse 12. यूहन्ना 1:12. Now you have received the right to become the child of God. अब आपके पास आपको वो हक मिला है परमेश्वर के बच्चे बनने का. Yeah, so now you know which family you are in. अब आप जानते हो कौन से परिवार में आप हो? There's a first family in the world. There's a first family. संसार का पहला परिवार. Father, पिता, Son, पुत्र, Holy Spirit. पवित्र आत्मा. And they have amazing fellowship. और उनके पास अद्भुत संगति होती है. चिक करते रहते हो तीनों भी. And they said, okay, you are born again now. Come here. और वो कहते तुम्हारा नया जन्म हुआ, आ जाओ. So all the three they take you. तीनों आपको लेते हैं. Now they talk chick. अब वो बात करते हैं. And they are also saying, और आपको कह रहे हैं, we also want you to learn this. हम भी चाहते हैं तुम ये सीख जाओ. English is good. अंग्रेजी अच्छी है. Hindi is हिंदी भी good. अच्छी है. Sindhi is good. सिंधी भी अच्छी है. Gujarati is good. गुजराती भी अच्छी है. Tamil is also good. तमिल भी अच्छा है. But there is a language लेकिन एक भाषा है which Jesus says, जो यीशु कहते I हैं, want to give it to you मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें so that you दूँ can talk to me. और फिर तुम मुझसे बात करो. Okay, so the moment, the day, the Holy Spirit brought a birth in your spirit. तो जिस वक्त पवित्र आत्मा ने नया जन्म लाया आपके आत्मा में, Yeah, that's same Holy Spirit came and now lives inside your spirit. वही पवित्र आत्मा आकर आपके आत्मा में आकर रहते हैं. You are carrying God now. आप परमेश्वर को लेकर चलते हो. What is this tongue? ये अन्य भाषा है क्या? Your spirit prays. आपकी आत्मा प्रार्थना करती But है. remember, inside your spirit, the Holy Spirit is. लेकिन इतना याद रखो आपके आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा है. They both are very close. वो दोनों बहुत करीबी है. They're very close. बहुत करीब है. They're very thick pals. They're friends. बहुत अच्छे दोस्त हैं. चालू रहता तुम्हारा. क्या हुआ? ये हुआ. हाँ, शर्ट बहुत अच्छा लग रहा है. पेंट बहुत अच्छा लग रहा है. जूते भी अच्छा लग रहा है. कुछ तो बात करने का ना. Friends are always like that. कुछ रहता नहीं, लेकिन वो बढ़ा देता. आज मैं पूछता हूँ क्या बात कर रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, हम लोग ये जूते वीते के बारे में बात कर रहे थे. Why they talk? क्यों बात करते हैं? Friends. क्योंकि दोस्त हैं. Can I tell you something? क्या मैं आपको कुछ The बताऊं? Holy Spirit and your spirit, पवित्र आत्मा और आपकी आत्मा, because you are born again, क्योंकि आपका नया जन्म हुआ they है, are very close to one वो another. बहुत एक दूसरे के करीब है. Do you know mothers? क्या आप जानते हो जो मम्मी होते हैं They talk to the babies. अपने बच्चों से बात करते हैं. And do you know you also spoke to your children in tongues? क्या आप जानते हो आपने भी आपके बच्चों से अन्य भाषा में बात की? आपके अन्य भाषा में. गोचू गोचू गोचू. Have you not done it? Yes. और क्या? हाँ लुलु लुलु. लुलु लुलु लुलु. What are you doing? आप क्या कर रहे हो? You're showing love. आप प्रेम दिखा रहे हो. Isn't it? Why are you showing love? क्यों प्रेम दिखा रहे हो? Because that's your child, क्योंकि वो right? आपका बच्चा है. Can I tell you something? क्या मैं आपको कुछ With बताऊं? all boldness, साहस के साथ. the moment you enter God's family, जिस वक्त आप प्रभु के परिवार का भाग हो जाते you हो, are different now. आप अलग हो. God loves you. प्रभु आपसे प्यार God करते हैं. celebrates you. प्रभु आपका उत्सव God मनाते हैं. delights in you. प्रभु आप में बहुत आनंद You लेते are हैं. His joy. आप प्रभु का आनंद हो. Have you got up and suddenly you feel some song is going on in your heart? क्या आप कभी उठे और अंदर से ऐसा लग रहा है कि कोई गीत चल रहा है आपके अंदर? Not Bollywood, बॉलीवुड का नहीं. or not Trollywood, or Hyderabad, or Tamilwood.
How many of you get up and suddenly a song is going on inside? आप उठते हो और अचानक आपको ऐसा लग रहा है अंदर एक गीत चल रहा है। My question: मेरा सवाल है, who put the radio on or the whatever you say? Who put it on? किसने वो म्यूजिक चालू किया? हाँ, किसने? Music नहीं मम्मा, it is a गीत। song. सॉन्ग। You know who? पता है किसने? पवित्र आत्मा। He sings over his beloved. वो अपने प्रियो के ऊपर गीत गाते हैं। But you may say, but that is the Lord's song. I sing it to God. लेकिन आप कहेंगे वो तो प्रभु का गीत है जो मैं प्रभु के लिए गाता हूँ। Yeah, but that same song He sings over you. लेकिन वही गीत प्रभु आपके ऊपर भी गाते हैं। Your spirit आपके आत्मा and the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा। And I said, these two are very close. और मैंने कहा ये दोनों बहुत करीब है। Very close. That means your spirit has the ability to pick up whatever He whispers. इसका मतलब आपकी आत्मा में वो क्षमता है कि जो भी पवित्र आत्मा कहते हैं वो पकड़ लेता है। Acts chapter 2 verse 4, last words for today. प्रेरितों के कार्य 2:4। And they were all filled with the Holy Spirit. और वो सब पवित्र आत्मा से भर गए And they began to speak with tongues. और अन्य भाषा में बोलने लगे। As the Spirit gave them utterance. जैसे पवित्र आत्मा ने शब्द। I want you to catch two words which I am going to throw. मैं चाहता हूँ दो शब्द जो मैं कहूँगा वो पकड़ लेना। The Holy Spirit पवित्र आत्मा does two things when you pray in tongues. दो चीजें करते हैं जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो। One, पहला, He'll give you words. वो आपको शब्द देते हैं। He'll give you words. वो आपको शब्द देते हैं। Do you know a child? जो बच्चा होता है, Mother will say Mama. माँ ऐसे सिखाती है बोलना। बोलो बोलो बोलो. माँ कहती है बोलो मम्मा, Ma. So the child. तो बच्चा ऐसे कोशिश करेगा। Mom is giving, child is holding. बच्चा माँ शब्द दे रही है, बच्चा उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है Child is trying to talk. और बच्चा बात करने की कोशिश कर रहा है। Amen. Who gives the words? कौन वो शब्द देते हैं? Holy Spirit. पवित्र आत्मा। I want you to. So the word is given by the Holy Spirit. तो वो शब्द पवित्र आत्मा देते हैं। Number 2. दूसरी बात, The ability to speak also is given by the Holy Spirit. बोलने की क्षमता भी पवित्र आत्मा देते हैं। That's what I want you to catch. मैं चाहता हूँ ये आप समझो। So then you pray in tongues, okay? Okay. तब अन्य भाषा में प्रार्थना Okay. करना। Suppose I pray. Sharaba halama. मानो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। Okay. Somebody asked me, Pastor, can I decide when to pray in tongues? किसी ने मुझे पूछा क्या मैं निर्णय ले सकता हूँ कब मुझे प्रार्थना करना है अन्य भाषा में? Yes. हाँ। 1 Corinthians 14 verse 15. पहला कोरिन्थियों 14:15। So what should I do? तो मैंने क्या करना है? I will pray in the Spirit. मैं आत्मा में प्रार्थना करूंगा। I will. That means I can decide if I want to pray. इसका मतलब मैं निर्णय ले सकता हूँ कि मुझे अन्य भाषा में प्रार्थना करना है कि नहीं। Holy Spirit will not push me. Come on. पवित्र आत्मा से धक्का नहीं देंगे कि चलो प्रार्थना करो। No, not like that. ऐसा नहीं होता है। No. I will. मैं इच्छा करूंगा। So if I want to pray in tongues, तो right? अगर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहता हूँ I अभी, can use my will मैं मेरी इच्छा का इस्तेमाल कर सकता and हूँ I can say और मैं कह सकता हूँ I want to pray in tongues. मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करना So as चाहता I हूँ। take a step of faith, तो जैसे मैं एक विश्वास का कदम उठाता हूँ, Holy Spirit gives me words. पवित्र आत्मा मुझे शब्द देते हैं And He gives me the ability to also speak. और वो क्षमता भी देते हैं प्रार्थना करने की। Now you have to give sound to it. आपने आवाज देना है। That it cannot come. That will not come through the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं आएगा। Remember, demons control. Holy Spirit never controls because He is a gentle God. हमेशा याद रखना दुष्ट आत्माएं नियंत्रण लेते हैं एक व्यक्ति के ऊपर, लेकिन पवित्र आत्मा कभी भी नियंत्रण नहीं लेते Do you know- क्योंकि वो बहुत कोमल है। Do you know one of the fruit of the Holy Spirit is gentleness? क्या आप जानते हो पवित्र आत्मा के फलों में से एक फल है कोमलता। Yeah, उनको तो बोलना पड़ता आप बैठो करके। अगर आप उनको बैठने नहीं बोलोगे तो वो खड़े रहेंगे। He is so gentle. But very powerful. बहुत सामर्थ्यशाली। Just look at the balance. Very powerful, but yet very gentle. संतुलन देखो, बहुत सामर्थ्यशाली लेकिन बहुत कोमल। You can be very rich, आप बहुत अमीर हो सकते हो but yet you can carry a heart of great kindness to people. लेकिन बड़ी दया का हृदय लेकर चल सकते हो लोगों के लिए। So the moment you learn to have a balance, जिस वक्त आप सीख जाते हो ये संतुलन लाना, God can bless you richly in every area of your प्रभु life. आपको बहुत ज्यादा आशीष दे सकते हैं हर एक जीवन के क्षेत्र में। Let me close. समाप्त करेंगे। Okay, so for me, you know what I learned?
मेरे लिए मैंने क्या सीखा? If I want to pray in tongues, अगर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहता हूँ, Holy Spirit is giving something, पवित्र आत्मा मुझे कुछ दे रहे शब्द, I pick it up मैं उसे लेता हूँ and then I speak. और फिर बोलता हूँ। Amen. Correct? That means when you pray in tongues, you are receiving. इसका मतलब जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो तो आप कुछ ले रहे हो पहले। From whom? किससे? Holy Spirit. पवित्र आत्मा से। That means इसका मतलब है, my conclusion is this: मेरा कंक्लूजन यही है, you are already ready. You are already receiving words from God when you are speaking in tongues. कि आप बिल्कुल तैयार हो परमेश्वर से शब्दों को प्राप्त कर रहे हो जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो। Now it should not be a difficulty. No, I don't know how to receive from God. अब ऐसा- I don't know how to pick up words from God. No, no, no. When you are praying in tongues, you are in that process. तो अब ऐसे मन में नहीं चलना चाहिए कि मैं नहीं जानता कि कैसे शब्दों को लेना है। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो आप ले भी रहे हो और बोल भी रहे हो। So the moment you learn to pray in tongues, I want to tell you, now you are eligible to hear from the Almighty God anytime, anywhere in the name of Jesus. जिस वक्त आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना सीख जाते हो, आप एकदम तैयार हो परमेश्वर से कभी भी कहीं भी सुनने के लिए। Otherwise, how can you speak in tongues? वरना आप अन्य भाषा में प्रार्थना कैसे कर सकते हो? कैसे कर सकते हो? So today, this morning, तो सुबह by the help of God, let one lie be destroyed. होने तो एक झूठ का नाश हो जाए हमारे मन में। What is that lie? क्या है वो झूठ? That I cannot hear the Holy Spirit. कि मैं पवित्र आत्मा को नहीं सुन सकता। You will hear the Holy Spirit आप जरूर सुनोगे पवित्र आत्मा because when को, you pray in tongues, क्योंकि जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना you करते हो, are picking the words from the Holy आप Spirit. पवित्र आत्मा से शब्दों को ले रहे हो And by His grace and by His power, you are speaking. और उनके अनुग्रह और सामर्थ्य से आप बोल भी रहे हो। And all God's people और say, सभी लोग कहे Amen. Let's Amen. give the Lord a big hand of praise. प्रभु के लिए जोर से ताली बजाएंगे।